Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are also preparing pretty well for your examination. And I expect कि आपने already जो previous videos हैं ICMR से related आपने उन्हें देखा होगा. So in this video we will discuss some questions related to the immunology as per your request. So I will provide some new question related to the immunology along with the concepts as well as the bullet points. So write it down in your notes, and if you like my efforts, you can hit the like button and do subscribe my channel for more such content. So the first question is, which of the following compound is not found in tears? You have to mention that which of the following compound is not present in tears. So lysozyme is a major component of tear. So ये तो option नहीं हो सकता. Lactoferrin is also a component of tear and IgA is also present in the tear. Therefore, the answer is IgE, which is not the component of tear. So basically, tear proteins are produced by the lacrimal gland, ocular surface and the epithelia. And अगर major lacrimal proteins की बात करें, so the major lacrimal proteins are lysozyme, lactoferrins and also the लिपोकैलिन. सो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो लैक्टोफेरिन है, लाइसोजाइम है, आईजीए, ऑल दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ आवर टीयर्स, यानी हमारे टीयर्स में ये प्रेजेंट होते हैं. एंड देयरफॉर आईजीई जो है वो ऑड वन आउट है. आईजीई इज नॉट प्रेजेंट इन आवर टीयर्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन ईजी वन. नेम द साइटोकाइंस विच released in response to the viral infection. Interferons, monokines, lymphokines, interleukins. So basically it is the interferons which is responsible for the treating the viral infection. यानी interferon एक cytokine है जो in response to viral, जब infection होता है body में viral infection, तब जाके ये release होते हैं. Now next question, name the nerve stimulator which is responsible for the pain of the inflammation. Bradykinins, prostaglandin, histamines or kinins. So basically it is the kinins that is responsible for the pain of the inflammation. So basically in our body these important inflammatory mediators are present but they are in the inactivated form. यानी जब तक हमारी बॉडी में वो प्रेजेंट होते हैं विदाउट एनी इन्फ्लेमेशन, वो हमेशा कैसे रहेंगे, इनएक्टिव स्टेट में रहेंगे. बट सम काइंड ऑफ टिश्यू इंजरी एक्टिवेट्स देम and they cause vasodilation and increased permeability of the capillaries. So जो काइनिन है it is responsible for the pain of inflammation. and अगर हम लोग specifically बात करें, so it is the bradykinin which is the stimulant of the pain receptors in the skin. Now next question, mark the one which is not a lymphoid progenitor cell. Monocyte, B cell, T cell, natural killer cell. So जो lymphoid progenitor नहीं है which is the मोनोसाइट ओनली, और ये जो बी सेल, टी सेल, एनके सेल है, ऑल दीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लिम्फोइड प्रोजेनाइटर बट नॉट द माइलॉइड प्रोजेनाइटर. एंड मोनोसाइट जो है इट इज़ अ माइलॉइड प्रोजेनाइटर. आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड दिस हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल जो कि डिवाइड होता है. दिस इज द हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल विच इज़ सेल्फ रिन्यूइंग, यानी कि ये अपने आप से ही ऑटो रिन्यूअल करता है अपना. and it is divided into myeloid progenitor as well as the lymphoid progenitor. and in the right side you can see lymphoid progenitor में कौन कौन से आते हैं, natural killer cell and also the T cell progenitor. T cell progenitor से cytotoxic T cell बनेगा and as well as the T helper cell. and along with that B cell progenitor which will give rise to the B cell. and also इसके अलावा T और B के अलावा कौन सा lymphoid cell present रहता है, dendritic cell. So all these cells are arising from the lymphoid progenitor, that is the natural killer cell, T cell, that is the cytotoxic T cell and helper T cell, as well as the B cell and also the dendritic cell. Now in the left side you can see this HSC is dividing into the myeloid progenitor, and then this myeloid progenitor is giving rise to the different kind of progenitor cell like the granulocyte monocyte progenitor which will give rise to the monocyte, and this monocyte will develop into the macrophages. and apart from that this eosinophil progenitor will give rise to eosinophil, this basophil progenitor will give rise to basophil, and megakaryocyte will make the platelets, and this erythroid progenitor will give rise to erythrocyte or the RBC. so basically जो माइलॉइड प्रोजेनाइटर है वो बनाता है मैक्रोफेज या फिर मोनोसाइट, यानी मोनोसाइट पहले बनता है, वो डेवलप हो जाता है मैक्रोसाइट में. न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल, प्लेटलेट्स, आरबीसी, ये सारे जो हैं
वो बनते हैं इस माइलॉइड प्रोजेनाइटर से। अगर लिम्फोइड प्रोजेनाइटर की बात करें तो दे गिव राइज टू द लिम्फोसाइट्स। Now next question, Shediac-Higashi syndrome is caused due to the deficiency of neutrophil, NK cell, basophil, mast cell. So basically it is the deficiency of natural killer cell. So basically ये जो CH syndrome है या जिसे CHS भी कहा जाता है, Shediac-Higashi syndrome, it is a rare and inherited complex immune disorder जिसमें क्या होता है, it usually occurs in childhood, यानी बचपन से ही ये होता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई रिड्यूस्ड पिगमेंट इन द स्किन एंड आइज़, यानी हमारी जो स्किन और आइज़ हैं उसमें जो पिगमेंट्स होने चाहिए वो नहीं होता है, देयरफॉर इट गिव राइज टू द एल्बिनिज्म एंड विद एन इंक्रीज्ड चांसेस टू इन्फेक्शंस एंड ऑल्सो अ टेंडेंसी टू ब्रूज एंड ब्लीड ईजिली। तो आपको ध्यान रखना है, इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नेचुरल किलर सेल। Now name the molecule which constitutively expressed on the dendritic cell. Class 1 MHC, Class 2 MHC, APC or antigen. So basically it is the Class 2 MHC which is constitutively expressed on the dendritic cell. Now I have also included the pointers. So write it down the pointers, like Class 1 MHC gene encode the glycoprotein and these are expressed on the surface of all nucleated cell, यानी सभी nucleated cell में Class 1 MHC express होता है। And the major function of Class 1 gene product is presentation of peptide antigen to TC cell. Class 1 MHC क्या करता है, TC cell को प्रेजेंट करता है पेप्टाइड्स। एंड क्लास 2 MHC जीन्स की बात करें, सो दीज एनकोड्स ग्लाइकोप्रोटीन विच आर एक्सप्रेस्ड प्राइमरीली ऑन दी APCs, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे वो एक्सप्रेस होती हैं। एंड व्हाट आर दी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल एंड दी बी सेल। देयरफॉर इसका आंसर था क्लास 2 MHC एंड दे प्रोसेस एंटीजन पेप्टाइड्स टू TH सेल। आपको ध्यान रखना है क्लास 2 MHC सेल किसे करेगा, TH सेल को। हाउ यू गोना रिमेंबर इट, देखिए क्लास 2 है एंड H कैसा दिखता है, 2 जैसा ही दिखता है। अगर ये लाइन हम हॉरिजॉन्टल लाइन को हटा दे तो आप वैसे ही याद रख सकते हैं। मैं ऐसे ही याद रखती थी कि क्लास 2 MHC है तो यहाँ पे 2 जो है वो H जैसा ही दिखेगा। सो क्लास 2 MHC इज फॉर T हेल्पर सेल एंड क्लास 1 MHC इज फॉर TC सेल, T साइटोटॉक्सिक सेल। क्लास 3 MHC इज इन्वॉल्व इन वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो आपको ध्यान हो जाना चाहिए, क्लास 1 MHC जो है ग्लाइकोप्रोटीन जो एनकोड करता है, इट प्रेजेंट्स द एंटीजेनिक पेप्टाइड टू द TC सेल। क्लास 2 जो है T हेल्पर सेल को प्रेजेंट करता है। क्लास 2 जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में देखने को मिलता है, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल, बी सेल्स। सो दीज आर द की पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इज अ टाइट क्लस्टर ऑफ लिंक्ड व्हाट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जीन्स और लिपिड मॉलिक्यूल। सो बेसिकली MHC कॉम्प्लेक्स इज अ टाइट क्लस्टर ऑफ लिंक्ड जीन्स, यानी लिंक्ड जीन्स होते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे की पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बेसिकली MHC इज अ कलेक्शन ऑफ जीन्स विद इन अ लॉन्ग कंटिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ DNA ऑन क्रोमोसोम 6 इन ह्यूमंस एज वेल एज क्रोमोसोम 17 इन अ माइस। आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमंस में कौन सा क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम 6, एंड अगर माइस की बात करें तो इट इज़ ऑन दी क्रोमोसोम 17। तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस, अगर आपको डायरेक्टली स्पेसिफिकली ह्यूमंस या फिर माइस का पूछ दे, सो इट इज ऑन द क्रोमोसोम नंबर 6 इन ह्यूमंस एंड क्रोमोसोम 17 इन माइस। ऑल्सो द MHC इज रेफर्ड टू एज द HLA कॉम्प्लेक्स इन ह्यूमंस, यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस कहा जाता है MHC को ह्यूमंस में, एंड इट इज H2 कॉम्प्लेक्स इन माइस। अगेन यहाँ इस 2 की पॉइंट से भी 2 क्वेश्चन अराइज हो गए। तो यहाँ से देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपके बन गए। ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन जो नॉर्मल मैंने लिखा था, उसके अलावा ह्यूमंस में कौन से क्रोमोसोम में रहता है, माइस में कौन से क्रोमोसोम में रहता है, एंड व्हाट इज MHC इन ह्यूमन नोन एज, एंड व्हाट इज MHC इन माइस नोन एज। सो बेसिकली ह्यूमंस में HLA बोला जाता है, HLA कॉम्प्लेक्स दैट इज द ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, एंड H2 कॉम्प्लेक्स बोला जाता है माइस में। सो आई होप आपको ये सारे की पॉइंट्स समझ में आ रहे होंगे एंड सारे की पॉइंट्स आपने नोट डाउन करे होंगे। नाउ द सेम क्वेश्चन, what is the name of MHC in humans? HLA, H2, adjuvants, haplotype. So basically it is the HLA, that is the human leukocyte antigen, यानी MHC को humans में HLA बोला जाता है and mice में H2 बोला जाता है। Now one more question, which of the following polypeptide is important for the expression of MHC1 on the cell membrane? Interferons, beta-2 microglobin, lymphokines और interleukin. So basically जब MHC1 की बात करते हैं, it is the beta-2 microglobin. So basically in MHC1
यानी कि MHC क्लास 1 में बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ MHC1 ऑन द सेल मेम्ब्रेन. सो आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड द डायग्राम फॉर द क्विक रेफरेंस. सो यहाँ पे देखिए ये है क्लास 1 मॉलिक्यूल. क्लास 1 मॉलिक्यूल में क्या है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड यहाँ पे है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन. नाउ उसी के सेकेंड पार्ट में देखिए क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल में वहाँ पे क्या है, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा 1 एंड बीटा 2. तो आपको ध्यान में रखना है कि जब MHC1 की बात होगी तो वहाँ पे क्या होगा, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अलॉन्ग विद दी बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन. एंड जब बात करेंगे MHC क्लास 2 की तो वहाँ पे होगा अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2. तो ये क्लियर डिस्टिंक्शन आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में आ सकता है. Means beta 1 is not present in the class 1 MHC, it is present in the class 2 MHC. Now next question, which of the following are non-professional antigen presenting cells? Macrophages, dendritic cells, fibroblast, B lymphocyte. So odd one out is fibroblast. So fibroblast is the non-professional antigen presenting cells. So basically APC को divide किया जा सकता है in the professional antigen presenting cell and non-professional APCs. सो नॉन प्रोफेशनल एपीसीज में कौन कौन आते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, एपिथेलियल सेल, ग्लायल सेल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं. एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो प्रोफेशनल होती हैं उसमें क्या क्या आता है, बी लिम्फोसाइट, डेंड्राइटिक सेल, ये सारी चीज़ें आती हैं. अब अगर एक ये क्वेश्चन आ जाए, सपोज कि नेम द क्लास ऑफ MHC विच इज़ रिकग्नाइज बाय द CD4TH सेल, यानी CD4TH सेल को रिकग्नाइज करने वाला MHC क्लास कौन सा है. सो अभी जस्ट मैंने बताया था इट इज़ दी MHC2 विच विल रिकग्नाइज दी T हेल्पर सेल. एंड हमें पता है CD4 इज अ मोनोमेरिक सिंगल चेन विच रिकग्नाइजेज MHC2. यहाँ पे लिंक सिर्फ था CD4 क्योंकि हमको पता है T हेल्पर सेल जो है उसे रिकग्नाइज करता है CD4 विच इज़ अ मोनोमेरिक सिंगल चेन. एंड अगर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है इसका ऑपोजिट, सो क्या हो जाएगा, CD8 एंड TC सेल. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MHC क्लास 1. आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ. CD8 TC लिखा है तो वहाँ पे MHC1 होगा एंड CD4 TH सेल लिखा है तो वहाँ पे MHC2 होगा. नाउ अगर एक और क्वेश्चन आ जाए, नेम द पार्ट ऑफ प्रोसेस्ड एंटीजन दैट बाइंड्स टू द MHC मॉलिक्यूल एंड रिकग्नाइज बाय T सेल. यानी आपको बताना है कि एंटीजन का कौन सा जो पार्ट है वो बाइंड होता है MHC मॉलिक्यूल से और उसके बाद क्या होता है, रिकग्नाइज किया जाता है T सेल के द्वारा. सो किस पर्टिकुलर पार्ट को वो प्रोसेस करके प्रेजेंट कर देता है T सेल को. सो इट इज़ दी एग्रीटोप. आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, एग्रीटोप. एग्रीटोप का मतलब क्या होता है, एग्रीटोप इज दी पार्ट ऑफ प्रोसेस्ड एंटीजन दैट इज अटैच टू दी MHC मॉलिक्यूल एंड एक्सपोज टू दी T सेल. यानी जब एंटीजन का क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, एंटीजन का प्रोसेसिंग होता है तो उसका जो पार्ट किसको दिया जाता है, इस T सेल को, उस पार्ट को कहा जाता है एग्रीटोप. तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको किसे चूज करना है, नॉट एपिटोप, यू हैव टू चूज एग्रीटोप. नाउ एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन कैन पास प्लेसेंटा. कौन प्लेसेंटा को पास कर सकता है. हमारे पास कौन कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, IgG, उसके अलावा IgA, इसके अलावा IgM, IgD एंड इसके अलावा IgE. So out of all the immunoglobulin we have, which of the following can pass through the placenta? So you have to remember it is the only IgG that is capable of crossing the placenta except the IgG2. ऑल अदर सबटाइप्स जो होते हैं IgG के वो क्या कर सकते हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं. मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है. सो आपको ध्यान रखना है कि अगर सबटाइप्स नहीं पूछा है और सिर्फ ये जैसे मैंने ऑप्शंस लिखे हैं वैसे आपको दिया है, सो यू हैव टू सिलेक्ट द IgG विच इज़ द ओनली एंटीबॉडी विच कैन पास थ्रू द प्लेसेंटा. नाउ इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है, नेम द क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन विच हैज़ पेंटामरिक स्ट्रक्चर. सो पेंटामरिक स्ट्रक्चर किसका होता है, IgM का होता है पेंटामरिक स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो इट इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी विच इज़ मेड बाय द डेवलपिंग B सेल.
सो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि IgM जो है वो फर्स्ट एंटीबॉडी है ड्यूरिंग द प्राइमरी रिस्पॉन्स, जब होता है एंटीजन के अगेंस्ट में तो सबसे पहले IgM बनता है, एंड ऑल्सो इट इज़ द पेंटामेरिक स्ट्रक्चर विथ अ J चेन। सो आई होप आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दे दिया है, एंड ये जो पार्ट है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा बिकॉज इम्यूनोलॉजी को एक पार्ट में बताना इज़ नॉट पॉसिबल। सो आई होप यू लाइक्ड इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।